हेलो एंड वेलकम टू दिल की बातें, जहाँ बातें दिल से दिल तक होती है। एंड गेस व्हाट, आज मेरे साथ कौन है? अ शेफ who turned out to be an author, and now she's doing both. But can you guess her age? She's just 23. And welcome to Sakshi Gandhi. Hi Sakshi. Hello. Hi, hi. Thank you for having me. आई एम सो एक्साइटेड, आई फील हमारी जनरेशन में बहुत फास्ट है, लाइक उसको सब करना होता है तुरंत जल्दी। लाइक यू आर जस्ट 23 एंड यू आर लाइक शेफ, यू आर ऑथर। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड टू नो अबाउट यू। I am too. Let's start. Yeah, so tell me, like, how it all started with you, like how you decided to be a chef and an author, how your journey looks like. So basically, I am a pastry chef. I am not a chef. तो मतलब मुझे cooking में इतना interest नहीं है. मेरा main passion is baking. So I decided this when I think COVID के time पे जब सब लोग पूरी दुनिया baking कर रही थी तो मैंने भी try किया. And then I decided मुझे हमेशा से ऐसा था कि से वो MBA नहीं करना है. I always wanted to do something different. तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, let's give it a shot and then किया मैंने. I gave it a shot and then here I am 2 years later. Uh, Wow. I'm a pastry chef now, so yeah. Wow, wow, wow. And how you become an author? We would love if you can show us your book as well. Yeah, so my book is here. It's called The Cozy Bean. Wow, it looks so cute. Yeah, so yeah, this is my book and how I became an author is actually ये तो मुझे भी नहीं पता है कैसे हुआ ये सब. But I think it started. I always had that thought in mind. I read a lot of romance novels. I मुझे बहुत पसंद है पढ़ना. तो मैं अभी आई थिंक दिसंबर में आई ब्रोक माई लेग एंड आई वाज ऑन अ बेड रेस्ट फॉर 3 months. So Right. that's when the this book came to life and the rest is history. So yeah, I Oh think. wow, this is so nice. I think आपकी लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम आती हो, फिर कुछ ना कुछ नया वहीं से ही करके आते हो. हाँ. Like every problem has some gifts for you. Yeah. Also, I think मैं एक साल से ब्रेक पे थी. आई वॉज ऑन अ ब्रेक. आई वॉज नॉट वर्किंग फॉर 1 year. आई क्विट माई जॉब लास्ट ईयर इन मई और अब जाके मैंने वापस मई में ज्वाइन किया है. तो आई थिंक वो एक साल जो पूरा मेरा गया है, आई थिंक दैट दैट फेज, आई थिंक वो मैंने बुक में ज्यादा डाला है कि हाउ दैट फेज वेंट एंड एवरीथिंग. Oh, wow. But we would love to know like what exactly the book is about. You said कि आप romance book पढ़ते थे, तो आपने या बता दिया कि हाँ ये romantic book है. But what it's inside? क्या है? And show the book तो again while telling us this. Yeah, so I think this book, it is a story of two people. I think जो the female protagonist है उसका नाम सिमरन है, and she is the owner of a cafe named Cozy Bean. And the guy whose name is Avinash is from the corporate world, but उसको भी कुछ अलग करना है. He wants to get into content creation and do it, like he wants to be a full-time content creator. And somehow they cross paths and somehow he visits her cafe and then they fall in love, and it's very cute and it's something I would want for myself in Oh, like someday. oh wow. I think ये थोड़ा Gen Z टाइप की बुक हो गया. हाँ, बहुत I have जल्दी है ये. I love romantic books. I think वो हमारे अंदर सबका ना बॉलीवुड जाग जाता है. बॉलीवुड जेंजी डेफिनेटली है. बॉलीवुड इतना नहीं है बिकॉज आई एम नॉट अ बॉलीवुड फैन. आई थिंक आई एम अ बॉलीवुड फैन. मतलब मुझे लगता है अगर किसी भी बुक में बॉलीवुड है, लव स्टोरी है, तो हाँ. फिर तो मैं ऐसे तो पढ़ ही लूंगी. हाँ, तो वाह. ये पढ़ना आप. यू विल, आई थिंक यू देन विल डेफिनेटली आई एम गोइंग टू. वो लव लाइक. स्टोरी सुन के मेरे को लगा कि अब तो पढ़ना है ये बुक. पढ़े So पढ़े. moving forward, like tell me more about you. How your life has been till now that made you feel like कि मुझे ऐसी love story चाहिए. क्या what was the inspiration for that story? लव स्टोरी तो किसको नहीं चाहिए यार. मतलब आई थिंक एवरीबडी वांट्स दैट वन पर्सन जो कोई हो लाइफ में. एंड आई थिंक, yeah, I mean, I would also want somebody in my life in future जो एक इंसान ऐसा हो कि you can just be friends with that person. Forget romance, and for romance comes at a very later stage, I feel. But वो कहते हैं ना, बॉलीवुड में नहीं बट प्यार दोस्ती है तो वो वाला फैक्टर है थोड़ा कि सिर्फ I need that one person in my life. I have great set of friends in my life, thankfully, and I'm backed by a very good set of friends. But ये एक अलग होता है, I feel.
So do you have that person right now in your life? No, not yet. I'm looking for that. This is no, not looking for that. Like ऐसे नहीं है, but I mean, I'm open for it if हाँ. something comes. So yeah. So what kind of person do you think you want? Like if our audience want to know कि जो हमारी author है जो इतनी romantic novel लिख रही है उनको कैसा partner चाहिए? How we will know that? मेरे को यार ऑनेस्टली इट्स जस्ट कि मेरे लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फ्रेंड्स फर्स्ट, तो मुझे वो वाला फेज चाहिए कि नो फ्रेंडशिप हो पहले एंड देन यू गेट टू नो ईच अदर, और तुम यू यू हैव टू बी वेरी फिल्टरलेस विद दैट पर्सन, यू डोंट हैव टू हैव फिल्टर, ये ना सोचना पड़े अगर रात को काम के बाद आके भी यही यहाँ पे भी नाटक ही करना है तो फिर कोई मतलब नहीं है ना. So Correct. that is something I think friendship is very very important. Right. Yeah, that is I would want something like What about other things? Only friendship is the important thing for And of course, ambitious. I want that person to be ambitious because I am at a stage in life जहाँ पे मुझे बहुत काम करना है. तो अगर and I don't want somebody from my field क्योंकि Okay. I want someone outside my field and somebody from a creative field probably. डॉक्टर इंजीनियर वो सब थोड़ा नहीं चाहिए. बट हाँ मतलब आई वुड वांट समवन क्योंकि मैं भी एक क्रिएटिव फील्ड से हूँ, अगर वो भी कोई अगर द पर्सन इज आल्सो फ्रॉम अ क्रिएटिव फील्ड इट मेक्स इट मच इंटरेस्टिंग एंड इट या आई मीन इट्स Right. समथिंग लाइक. आपका आई वांट टू ट्रैवल अलॉट, तो अगर कोई से ट्रैवल पार्टनर मिल जाए तो मजा ही आ जाए. Wow. I think one important thing in relationship जो आती है ना वो ये होता है कि क्या आप उनसे खुलकर बात कर पाते हो किसी भी चीज हाँ के बारे में. And that happened in friendship. And that's why we think कि हमें friendship वाला प्यार चाहिए जिसमें वो दोस्त भी रहे, gossip partner भी हो, travel वही partner भी वही हो. सब कुछ है वही एग्जैक्टली Wow. ऑल इन वन. Like, but I think if you are someone who's romantic, then definitely you will have some good history as well. So बिल्कुल अच्छी होगी. So what was your learning from those things? Like, what are things you have learned from your past relationships? रिलेशनशिप्स तो एज सच इतना नहीं रहा है मेरा, बट आई थिंक फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ कोर्स आई हैव लर्न समथिंग कि मतलब यही एक मेरा यही एक मेन है दैट आई शुड बी वेरी फिल्टरलेस विद दैट पर्सन. एंड मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे थोड़े अच्छे नहीं भी रहे हैं, बट या अभी तो फिलहाल तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा, तो या मतलब यही But I है. think जाने अनजाने हम ऐसा कर लेते हैं ना कि when we get into a relationship तो हम ना filters लगा लेते हैं. We try to be like कि हमें ये हाँ वो पसंद है. होता है, दैट आई अग्री, दैट आई हाँ. वेरी मच अग्री. हाँ वो होता है, बट देन वही है ना कि अगर वो लगाना पड़ रहा है तो फिर मेरा थोड़ा ऐसा हो जाता है कि यार देयर इज नो पॉइंट Yeah, अगर even ये I हो रहा feel है the तो. same. कि अगर Yeah. आप subconsciously भी वो filters लगा रहे हो, that means कि some part of you हाँ don't feel safe with that person. हाँ वही वही. Wow. So now, like when you were writing this book about the book you have written, कैसे ये बुक का आइडिया है? लाइक वो नाम कैसे सोचा आपने? नाम बहुत इंटरेस्टिंग है. नाम एक्चुअली इसलिए सोचा मैं आई वांटेड सम द कैरेक्टर्स जो मेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज अगर कोई ऐसा हुआ जो मेरी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता. तो इसलिए आई these are very random names that I've chosen. सिमरन एंड अविनाश, they are very very random names, ऐसे ही हाँ. बस पॉप अप हुआ और मैंने रख दिया. बट ऐसा कुछ नाम के पीछे तो ऐसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट कि मुझे ये चाहिए था कि मेरी लाइफ में वो इंसान एग्जिस्ट ना करे, एटलीस्ट दोज पीपल शुड नॉट एग्जिस्ट इन माई लाइफ. सो या Right. So how, no, नाम of the novel of मतलब बुक अच्छा का नाम एक बुक का क्वेश्चन. नाम ओके. हाँ. हाँ बुक का नाम इट्स द नेम ऑफ द कैफे एज आई टोल्ड यू, जो मेरा भी ड्रीम कैफे होगा इसी नाम से होगा जब भी इन फ्यूचर कभी भी होगा. Oh wow. तो It's like a हाँ manifestation of your cafe. नाम it's बताओ. exactly the manifestation of my life. I have written it in my book also. जो first page पे ही मैंने लिखा है, it is the manifestation of the life that I want. It is Oh very very my clear. God, this is so amazing. ये अच्छा तरीका है. मैनिफेस्ट करने का मस्त तरीका है. हाँ यार मतलब हाँ ये तो मैंने लेजिट फर्स्ट लाइन मेरी है, जो आप डियर रीडर्स वाला पार्ट पढ़ोगे उसमें लिखा है, इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ माय वाओ. लाइफ, इट इज द लाइफ दैट आई वांट टू क्रिएट फॉर माई सेल्फ. तो वी हैव सीन लॉट ऑफ मैनिफेस्टेशन के तरीके, पर ये तरीका आज तक का बेस्ट रहा है. तो जो भी हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, प्लीज गो एंड ऑर्डर दिस बुक. यू कैन नो कि कैसे साक्षी मैनिफेस्ट करने वाली है अपना फ्यूचर, सबको पढ़ा के, मतलब सबको वो पहले बता रही है फिर वो होने वाला है. सो ये तो बेस्ट तरीका है. सो साक्षी, वेयर वी कैन फाइंड ऑल दिस बुक?
This book is available on Amazon. It is available on Flipkart, and it is also available on the Notion Press, my publishing house का website. So Notion Press की website पे भी वो available है. It is also available in the international markets. वाओ, UK में available है, US में available है, Canada में available है. हर वाओ, जगह available है. तो आप क्या कहीं से भी खरीद बात। सकते हैं. So, guys, go ahead and read. If you are a romantic lover, you love romantic books, so go ahead and read it. So, recently, what I realized was कि मुझे लास्ट ईयर पता चला कि मुझे ना ये सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है. सो आई शिफ्टेड टू रोमांटिक बुक्स दिस ईयर. और अभी भी मैंने ना दो बुक्स पढ़ी इंडियन ऑथर्स की, लाइक एक तो रेड फ्लैग्स एंड रिश्तास, एंड The एक Radhika Agarwal, no? It's राधिका it's अग्रवाल. a वी very good book. वी हैड शूटेड विद हर एज वेल, लाइक हमारा पॉडकास्ट हुआ या उनके साथ. हाँ देखा था मैंने. And then Too Good to Be True by Mostly. प्राजक्ता कोहली. या. Yeah, I love that book. उसके बाद मैंने इंटरनेशनल बुक मंगवाई, मो बेटर देन मूवी. तो आई रियलाइज कि मुझे कनेक्ट नहीं हुआ. सो आई रियलाइज कि ओके, मुझे ना अभी ये इंडियन ऑथर की बुक पढ़ना ही अच्छा लगता है. कि उनका ना वो मजा आता है, एकदम अपनापन सा लगता है, देसी रोमांस आता है कि दे लाइक दे ऐड देयर ओन स्टोरीज. उनका बॉलीवुड, एंड हाँ. दोनों वो बॉलीवुड लवर है. सो दे ऑल ऐड बॉलीवुड चटका. लाइक डिड यू रीड इट? आपने पढ़ी है? I've read Red Flags and Rishtas as well as mostly same का Too Good to Be हाँ, True. आई Yes. लव्ड इट. मतलब आई वाज लाइक कि एकदम बॉलीवुड मसाला डाला है उन्होंने ऐसे हाँ. करनी. सो नाउ It's a आई एम very गोइंग टू रीड दिस बुक नेक्स्ट, पक्का. दिस विल बी ऑन माय लिस्ट, डेफिनेटली आई yes. विल गिव रिव्यू टू इट. ऑलरेडी मुझे लग के सुनने में बहुत मजा आने वाला है. बट आई वांट टू नो मोर अबाउट यू. लाइक क्या होता है कि व्हेन वी आर ग्रोइंग अप इन एनी कल्चर, तो हमारा कुछ ना कुछ हम सीखते हैं. वी हाँ. स्टॉप आवरसेल्फ. हम खुद को बहुत चीजें करने से रोकते हैं. लाइक रोमांस एक बहुत बड़ा टैबू है हमारे कल्चर में कि अरेंज मैरिज ठीक है, आज भी हम कितना भी बोल रहे हैं. सो आपने भी अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में सुना होगा ये सब. सो वी वांट टू नो अबाउट दिस, व्हाट यू हैव गॉन थ्रू इन योर चाइल्डहुड. So see, I'll tell you. So मेरा ना mostly I have spent most of my life in a boarding school, and then I went to, so from I think sixth grade से मैं boarding school में थी. So from sixth till tenth I was in a boarding school, and वहाँ पे it was an all girls school. तो वहाँ पे तो बच्चे भी थे, हम तो इतनी maturity भी नहीं थी. Then 11 12th में I was in a co-ed school, but again we were kids. Then I went to college. So I have not stayed. The thing is, I have not stayed at home. I went for college to Jaipur. राइट, Okay, I was in Jaipur for 3 years, and then I went to Bombay for this baking wala thing. राइट. So I have not stayed at home. So my, of course, parents का वो रहता ही है कि ये रोमांस वाला टैबू, वो तो अभी आई थिंक हर घर में रहता है. हाँ, बट हाँ मतलब एज सच ऐसा कुछ था भी नहीं मेरी लाइफ में जो मैं उनको बताऊं, या कभी ऐसी वी हैव नेवर टॉक्ड अबाउट, वी हैव नेवर हैड दैट डिस्कशन. बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ था भी मेरी लाइफ में जो मैं उनको बता पाऊं. राइट. एंड ऑफ कोर्स आई वुड लव टू शेयर विद देम, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं खुशी खुशी, बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन यू आर 23 24 तो वो घर वाले भी फिर वो बोलने ही लगते हैं. तो अभी मैं आई कीप टेलिंग देम ऑल्सो कि कोई होगा तो मैं बता दूंगी सामने से, पर कोई नहीं है. ना कोई मिल रहा है अभी. राइट. बट हाउ वाज देयर रिएक्शन जब आपने बताया कि आप एक रोमांटिक नॉवेल लिख रहे हो? They were actually very, एक तो मैं I told you ना कि I was on a break for a year and I have हाँ, not done anything, and the reason for my break was also it was, something happened and then I had to quit my job and everything. I was not in a good state for the last 1 year. I have finally come out of it, and I say this कि I've come out of it. But last year I think was very tough on me, and my parents kept pushing me कि do something, do something, do something. But मेरे को वो clarity नहीं मिल रही थी कि मुझे क्या करना है and everything. And then when I broke my leg, या, and then of course I was on a bed rest, मेरे पास कुछ भी नहीं था करने को उस टाइम पे. So I think that's when I wrote my book, and मैंने बताया भी नहीं था किसी को. I told them after I almost completed my book. I think when I complete, there are 16 chapters in the book. I think when I was on the 15th 14th or 15th chapter, तब मैंने उनको बताया कि this is what I've been doing since the last 3 months, and I've राइट. been writing a book. एंड ऐसा नहीं है कि 3 मंथ्स आई हैव बीन प्लानिंग फॉर इट, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, बट यही है कि वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन नहीं आ रहा था. एंड आई थिंक द फैक्ट, आई थिंक मैं आई ब्रोक अ लेग इन बोथ वेज, मेटाफोरिकली ऑल्सो, एंड somebody told me कि ब्रेक अ लेग, तो मैंने सच में तोड़ दिया दोनों जगह पे. हाँ. तो फिर वो आई थिंक, हाँ, आई थिंक ब्रेकिंग माई लेग वॉज द मोटिवेशन So ऑफ they were राइटिंग. happy about They it. were very happy. They were like, "Oh, ठीक है, publish कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे." And my parents are very supportive that way. So yeah. Wow, wow. So I want to know, like, when you were done writing the book, कितना टाइम लगा बुक लिखने में?
बुक लिखने में आई थिंक 3 मंथ्स लगा, 3 मंथ्स जितना, 2.5 मंथ्स जितना। बट प्लानिंग मैंने बहुत पहले से करी कर रखी थी, इसलिए इतना जल्दी लिख दिया। बाकी इट्स नॉट दैट इजी। हाँ करेक्ट। लोगों को एक एक साल, आई रिमेम्बर, आई थिंक टू गुड टू बी ट्रू लिखने में प्राजक्ता कोहली को 1 साल लगा है, जहाँ हाँ तक मुझे पता है। तो हाँ मतलब, एंड हाँ, 2.5 3 मंथ्स इतना लगा था। हाँ। और पब्लिश कराने में? पब्लिश कराने में अनदर 2 मंथ्स। Oh, wow. So then 5 to 6 months you were done. 5 to 6 months, yeah. Wow. And like what were the challenges you were faced when you were writing the book and when you were done writing, publishing the book? Challenges, I think the main challenge was self doubt. वो हाँ बहुत आता है when you write the book, क्योंकि it's like कि मतलब at times I thought कि मैं क्यों, like why am I doing this, am I meant for this, or हाँ should I do this? But उस time पे I think your friends, they motivate you a lot, and I have been, thankfully I've been backed by a very good set of friends, तो वो लोग मेरे को मोटिवेट बहुत करते थे कि जस्ट डू समथिंग, एंड दे, वो तो मुझे 1 साल से बोल रहे थे कि कुछ कर कुछ कर, मुझे ही वो क्लैरिटी नहीं आ रही थी। wow. But then I think, yeah, I think my friends motivated me a lot. That was, I think, the biggest challenge कि सेल्फ डाउट बहुत होता था, लिखूं नहीं लिखूं, क्या कर रही हूँ, व्हाट एम आई डूइंग विद माय लाइफ, एंड ऑल ऑफ दैट। बट देन somehow I kept going, and somehow the book is out now. Wow, congratulations, Thank you. मतलब सेल्फ डाउट पे जीतना ही सबसे बड़ी जीत होती है, आई फील हाँ, समटाइम्स। वाओ, congratulations, आई थिंक वो अभी अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है अभी। अभी it's been 15 20 days. वाओ। क्या गोल सेट किया है अपने कि कितना हिट करना चाहिए? गोल तो मैंने सेट किया है कि एटलीस्ट मतलब 200 बुक बिक जाए, मैं बहुत खुश हूँ। अभी तक वो गोल अचीव नहीं हुआ है, बट आई एम वर्किंग Oh, टुवर्ड्स it's इट। just launched now. या इट्स जस्ट लॉन्च, अभी तो सिर्फ 20 days हुआ है, तो हाँ। या। प्राजक्ता कोहली ने कहा था कि शी वांटेड के उसका 10,000 तक ना सेल हो जाए, वो खुश हो जाएगी। बट व्हेन द फर्स्ट टाइम हैपेंड इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 30,000। या तो आई रिमेम्बर। सो आई थिंक कीप अ गोल हेड, आई ऑलवेज टेल, आई फील कि अपना गोल ना हायर सेट करो एंड सी इट विल गो मोर हायर। या सो my network is okay, right? यहाँ पे इट्स थोड़ा इट्स glitch हो रहा लाइक है। अ वीडियो हैज बीन पॉज्ड। ओ रियली? हाँ, मुझे लगा, आई थिंक। I think that's beautifully done. I think your book is going to go ahead, और I think हमारे इंडियन कल्चर में ना रोमांटिक बुक्स चाहिए, बहुत मिसिंग हो रही हैं. So definitely we are going to read it. So now we are going to the rapid fire round, जहाँ पे आपसे instant ओके, सवाल पूछूंगे, तो आपको instant आंसर करना है. Okay? ठीक है। Okay. First thing is one word that describes your life. My life, Yeah, one word. my describes my life, I think, exploring. Exploring. Yeah, it can be. Yeah. A book that changed your life. The Cozy Bean. Wow. One belief you live by. I think one believe Live by. Like you believe in that. One thought. I believe in having great friends around you. I Ah, think that is the belief yeah. definitely. Your favorite song? My favorite song, Abhi to, I've been obsessed by this song called Rain Talk by Aditya Bharadwaj. Wow. I keep listening to it even when I'm working. So yeah, Wow. First thing you do when you wake up. check my phone. So true. One advice to our listeners, whoever is listening to us. Just live your life the way you want. मत सुनो, मैंने बहुत सुन लिया लोगों की, there is nothing, but just do what you want and keep fighting towards the life that you want to build for yourself. And that is, I mean, yeah, that is the main thing that I've realized. One habit you want to change about yourself. I'm very lazy, so I would like to change that about me. Wow, but you have written the book in 5 months. Can you understand? Like 5 महीने में publish करवा ली. वो I'm तो मेरे पास कुछ था नहीं ना करने को, अदरवाइज तो आई वुड हैव Yeah, बीन you वेरी can waste लेजी, your मैं खुद time नहीं as कर well. सकती। You can be like Yeah. पढ़ा रहता है series देखते, but you still choose to हाँ, change. हाँ, Perfect. So great, Sakshi. I hope this book got a lot of recognition. And I think I'm excited to see how you promote your book, because I love how authors promote their book. They don't leave a single chance to promote it. yeah. So I'm trying to promote my book. Let's see. Thank you so much for having me. It was a definitely, great session. definitely. Yeah, thank you. And I'm going to order the book, and we will leave all the links in the description. So guys, go ahead and read this romantic book.
Yes, Perfect. thank you so Thank much. Let you. me just take a picture of us.